بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، دھڑتے دلوں کو میرا سلام۔ آج 10 مئی 2025 ہے، سیٹرڈے ہے، اور ہمارا رحمانی دسترخوان کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج دن دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم کھانا کھاتے ہیں، خود ان سے کھاتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے ہیں، پیار محبت سے بیٹھتے ہیں۔ دسترخوان کا آغاز ایک بہت خوبصورت حدیث کے ساتھ، احادیث ساری خوبصورت ہوتی ہے، لفظوں کا چناؤ ہوتا ہے جو کہ روزمرہ معاملات کے لیے کچھ آپس میں مماثلت کرتا ہے۔ آج کی حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں آپ سے، اس میں صدقات، خیرات، مہمان نوازی اور ہمسایوں کے بارے میں ہے۔ کیونکہ دسترخوان کا معاملہ ہے، دسترخوان سجنے چاہیے، ہونے چاہیے، اور یہ بہت بڑی محبت کی ایک علامت ہے دسترخوان۔ اس سے آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے اخلاق سے آپ واقف ہوتے ہیں، لوگ کس کرب سے گزرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے، جو شوقیہ آتے ہیں وہ بھی پتہ چلتا ہے، جو مجبوری کے تحت آتے ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو دسترخوان سے جانا چاہیے۔ دسترخوان کبھی بھی محدود نہیں ہوتے، ورنہ جناب دسترخوان نہ ہوتا۔ دسترخوان کا مطلب ہے وسیع و ریز۔ محدود کا مطلب ہے 1-2 بندے نہیں ہونے چاہیے، دسترخوان پہ زیادہ ہونے چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق میں نے آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، ہم صاحب، فہیم صاحب اور محمود صاحب میرے چچا میری مہمان آئے، عمار صاحب، میں نے نہیں کبھی اکیلے کھانا کھایا۔ میں جواب نہیں دے سکتا اپنے کھانے کا، اکیلا کھاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا، تو پھر میں اپنے ملازم جو میرا آفس کا ہوتا ہے یا صفائی والا ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کے کھاؤں۔ باہر بھی میں کہیں جاتا ہوں اکیلا تو میں وہاں سے کسی نہ کسی کو پکڑ لیتا ہوں کھانا کھاتے ہیں، تو وہ جواب نہیں پھر بنتے۔ جب آپ بیٹھ کے کسی گروپ کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تو پھر صاف بھی ہوتا ہے۔ اکیلے کھائیں گے تو صاف ہوتا ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت ہم جنگ کے معاملات میں گزر رہے ہیں۔ کسی گندی قوم کا پالا ہم سے پڑ گیا، ان کو یہ نہیں پتا تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ برق حدیث بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی آزمائش اس کے اہل و عیال، سب سے پہلے اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے پڑوس کے معاملات میں ہے۔ کتنی چیزیں بیان کی؟ ایک تو اس کا اپنا خاندان اہل و عیال ہے، اس کا مال جو وہ کماتا ہے، اور اس کے پڑوس میں، نیبر میں جو رہتے ہیں ان کے معاملات کیسے ان کے ساتھ یہ ہے۔ اس میں ہونے والی کمی کجی کا ازالہ نماز، خیرات و صدقات، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے ہو سکتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3393 نمبر حدیث ہے، حوالہ آپ کے ساتھ ہے، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ معاملات میں کمی کا ازالہ عبادات اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، جس میں صدقات کا بھی ذکر گیا، آپ کا جو معاملہ ہے اندرونی فیملی کے ساتھ وہ بھی ہے، جو آپ کے نیبر میں رہتے ہیں، لیفٹ رائٹ بیک فرنٹ، وہ بھی دیکھ لیا، جو کسی کے ساتھ آپ خیرات کرتے ہیں، کسی کو چھپا کے دیتے ہیں یا ظاہری دیتے ہیں، دونوں طریقوں سے دینا جائز ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ مال چھپا کے بھی دے سکتے ہیں اور دکھا کے بھی دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چھپا کے ملے، کسی کو ظاہر نہ ہو۔ جو دکھا کے دینے کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی پریچنگ ہو، لوگوں کو اس کی دعوت ہو کہ اگر حامد صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو بائی ناٹ می، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ فہیم صاحب کر رہے ہیں، عمار صاحب کر رہے ہیں، محمود صاحب یہ کام کر رہے ہیں تو کمل کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ اس لیے یہ دکھا کے دینے کا ہے۔ ہمارے ایک اور مہمان آ گئے، تنویر صاحب، ابھی عمرہ کر کے آئے، ہم تنویر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، عمرے کے بعد آئے ہیں۔ یہ بچوں کے ماموں جی، اور
बड़े प्यारे से मेरे ये दोस्त भी हैं तो जी उम्र करके हैं जी, वेलकम आपको करते हैं जी। उम्र के बाद हाजी साहब जैसा कि हदीस बयान हो रही थी, तलबात पा रहे थे, अभी तमाम चलते हैं बाहर, कुछ देर वेट कीजिएगा मेरा। फिर में क्या हाल है आपका? ठीक ठाक? वहीं बैठो मैं हूँ सब ऑफिस आते दो ना, सबको ले लिया आज सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये कितने लोग ये वाले बैठे? ये 25 लोग होंगे, 25 ये होंगे। रोशनी लगाई आपके लिए, आपके खूबसूरत चेहरे जो है ना वो मुझे फिर वीडियो में धीमे धीमे से नजर आते हैं। आप खूबसूरत जो लोग हैं ना, अच्छा मैं खूबसूरत क्यों कहता हूँ? आपकी वजह से मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो जिसकी वजह से इंसान को रिजल्ट मिलता हो तो उसको खूबसूरत कहते हैं। इंसान को दर्जे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतायत के लिए कम न थे करो क्या। इबादत से इंसान रिश्ता तो बन सकता है, लेकिन इंसानियत लेने के लिए इंसानों से मोहब्बत करनी पड़ती है। क्या ख्याल है? बात अच्छी लगी है ना? अच्छी लगे तो माफ। हाँ भाई, क्या हाल है आपका? मैंने बताया आप मोहब्बत वाले लोग हैं, आपकी वजह से हमारा रीजन आता है, ठीक है ना? मैंने एक बात की है कि इबादत से इंसान फरिश्ता तो बन सकता है, लेकिन इंसानियत बनने के लिए उसको इंसानों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। हमने इंसान बनना है, इंसानियत को अपनाना है। मज़हब बाद में है, पहले इंसानियत है। इस दस्तरखान में कोई मुसलमान है उसको भी वेलकम करते हैं, कोई नॉन मुस्लिम है उसको भी वेलकम करते हैं। हमें कोई अख्तियार नहीं है हम किसी से पूछें भाई आप कौन है। ये दस्तरखान है। अभी मैंने बयान किया दस्तरखान का मतलब है फैलाओ। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे आज यही दुआ है, आपने बड़े गौर से सुनना मेरी जान। 2 मिनट के लिए खड़े हो जी, क्योंकि आज खड़ा है हमारा पाकिस्तान इंडिया का। किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, बहुत सारे सवाल किए कि जी मेरे रिज़्क़ में इजाफा नहीं होता, मैं क्या करूँ? मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ लेकिन मेरी रिज़्क़ में इजाफा नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरत बात की। क्या कहा भला? एक तो हर वक्त आप वज़ू में रहें, 5 वक्त नमाज पढ़े, झूठ से किनारा कशी करें, अपने दस्तरखान को वसी कर दें, अपने दस्तरखान को वसी कर दें। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप चावल पकाएं, ज़रूरी नहीं आप गोश्त पकाएं, आप दाल पकाएं, आप पानी पिला दें, 4-5 बंदों को पानी पिला दें, मीठा नहीं फीका पिला दें, कड़वा पिला दें, उसकी प्यास बुझ जाए वो चीज़ आप दें। किसी को 2 बोल मठास के दे दें, अपने चेहरे की मुस्कुराहट दे दें, ये भी मोहब्बत है। ये भी दस्तरखान, ये भी दस्तरखान हमने बना दिया। हमारा ऐसी कौम से पाला पड़ गया है, गौ मूत्र पीने वाले लोग, हमें पाक लोगों को, मुसलमानों को ललकारा उन्होंने। 6 और 7 मई की रात से हमें तंग किया हुआ, हमारी आर्मी को बदनाम करने पे तुले हुए थे। तो पता चल गया उनको कि पाकिस्तान क्या है, ये पाक सरजमीन है जिसका ख्वाब पीर जमात अली शाह साहब, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और बहुत बड़े जय्यद उलमा इकराम जिन्होंने देखा है, उस कौम को ये मूत्र पीने वाली कौम ने ललकार दिया। हमारा मुकाबला है उनसे कोई, अब उनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कहें जरा, यही दुआ है हमारी। हमारी कौम, हमारे फौजी, हमारे जवान, हमारे जहादी, वो तो हर वक्त सर पे कफन बांध के फिर रहे हैं कि भाई हम तो शहादत के लिए तैयार हैं। वो तो कहते हैं हमारी ज़िंदगी ये नहीं है, हमारी ज़िंदगी कौन सी है? हमारी शहादत के बाद वाली ज़िंदगी है, हम तो उसके इंतज़ार में बैठे हैं। उधर फौजी अपनी बेगमात को इजाज़त ले रहे रो के कि हम जंग पे जा रहे हैं, वापसी पता नहीं मुसलमान बहुत मार रहे हैं, वो रो रहे हैं। तो हमारी माएँ जो इजाज़त दे रही हैं हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, वो बड़ी खुशी से जाते हैं। फर्क तो यही पे पता चल रहा है,
कभी मार पड़ सकती है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हम इस कौम को? कभी नहीं पड़ सकती। हम इम्तहान में आजमाइश में ज़रूर आती है ये कौम, लेकिन ये खड़ी होती है सीना तान के। ये इतना खूबसूरत नाम रख दिया आर्मी चीफ ने, जो कि गवर्नमेंट ने ये न्यू नाम दे दिया है। इस ऑपरेशन का जो नाम है वो सूरह सफ़ की 28वें पारे में 4 नंबर आयत है, जो कि इसका नाम रखा है बुनियानुल मरसूस, आहनी दीवार। कि जो मुसलमान लड़ते हैं ना जब अल्लाह की राह में, फिर वो पीछे नहीं देखते, वो अगले मंजर को देखते हैं। अब उसका पाला पड़ गया है, अब उसको छड़ी का दूर याद करा दिया 3-4 दिन से। अब तो वो स्टार्ट उन्होंने लिया है, इंतहा फिर हमने कर ली है। हमने भला क्या करना? वो तो जहाद पे लड़ रहे हैं, हमने उनके लिए दुआ करनी, उनके नाम पे हमने लोगों को प्यार करना है, हमने लोगों से दुआएं लेनी और उनको दुआएं देनी। ये खित्ता दुनिया में 2 रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लाम के नाम पे बनी है। वैसे तो 57 ममालिक हैं इस्लामी ममालिक, लेकिन 2 रियासतें ऐसी हैं जो कि कलमे के नाम पे बनी है। एक है रियासत मदीना, वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बनी है। एक है पाकिस्तान। क्या कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो रियासत है जिसका ख्वाब देखा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई थी, पीर जमात अली शाह साहब को बशारत हुई थी। तो इस पाक खित्ते को कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं पिछले 30 साल से सुन रहा था 2012 आखिरी है, फिर पता लगा 2016 आखिरी है, फिर पता लगा 2019 भी आखिरी था। पंगे लेते रहते हैं ना। तो इंशाअल्लाह ताला ये खित्ता रहेगा। जो ग़ज़वा हिंद है ना, हिंद, वो इसी खित्ते का नाम है। भाइयों सुन लो, ग़ज़वा हिंद जो है वो इसी खित्ते का नाम है। इधर से ही फौजें जा रही हैं, आप लोग ही होंगे, आप ही हैं, आप में से ही होंगे, हमारे ही भाई होंगे, हमारी नस्लें होंगे। इंशाअल्लाह ताला हम नहीं होंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो अगली हैं वो इस खित्ते को खूबसूरत गुलदस्ते की तरह देखेंगे। ये उभरता हुआ खूबसूरत ग्रीनरी वाला खित्ता होगा। आज के आपसे यही बात करनी थी मैंने कि ये जो दस्तरखान आज है ये भी पाक फौज और पाकिस्तान के नाम पे आज रहमानी दस्तरखान का नाम दिया गया हमने। हम इस नारे के साथ ये दुआ को मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, जहादी जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा जी आपसे। कोई गलती बोलने में हो जाए, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने ड्यूटी में जाना तो उनको भी हमने देखना होता है। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान को भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह नसीब फरमाए। नस्र मिनल्लाहि व फतहुल करीम। जो फ़लस्तीन गज़ा में हो रहा है, अल्लाह ताला यही जो साया इधर है उस तरफ भी ले जाए, ताकि बड़ा यहूदियों ने कहा था कि इस काबिल बना दूंगा मुसलमानों की औरतों को। जब डेथ हुई ना सलाहुद्दीन अय्यूबी की, तो यहूदी ने कहा अब मुसलमानों की औरतों को इस काबिल बना देंगे कि वो कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज उनके मरने के बाद भी, उनके वफात के बाद भी बहुत सारे सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर रहे हैं हमारे जहादी कौम में, जो हमें हिडन है। वो लगा रहे, लाइनें लग रही उनकी मुर्दों के, कुत्तों की तरह मार रहे हैं हम उनको। ये मोदी की समझ से बाला तर होगी बात कि ये किधर से फरिश्ते आ रहे हैं, किधर से अबाबील आ रहे हैं, किधर से टैंकरें आ रही हैं, किधर से तोपे आ रहे हैं, किधर से ड्रोन आ रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो गलीले लेके, ये मैंने कल देखा इधर अपना उकाड़े साइड पे, वो नीचे से मार रहे हैं उसको ड्रोन। तो ये जज्बा कहाँ किसी कौम में हो सकता है? ये तो हमें सदका है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ जी, जिए तो अली की तरह, मरे तो हुसैन की तरह। ये हमारा नाम है, हम इसी के कायल हैं। अल्लाह ताला हम सब को हम नसर हो। हमारी जितनी मुश्किलात है, जो लोग बीमार हैं उनके अल्लाह ताला सेहत दे। जो बच्चों की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उनके बच्चों को नेक करे, नमाजी करे, साले करे, आपका इज्जत करने वाला हो, हमारी आंखों की ठंडक हो। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक अलैहि बिरहमतिक।
मरे तो मुसलमान जब मरता है वो शहीद ही है। अच्छा कैसे कैसे यार प्लेटें इधर दो, इधर भाई आपने पेट भर के खाना भाई समझो। इधर से डाल के यार मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप सब लोग आते हैं मेरे साथ बैठते हैं। वो उधर से डाल के आएगा, इसमें आप डालिए। ये हो जाओ। हामिद भाई ये लो 4-5 मिनट का लो फिर बैठ सकते हैं। अमजद किधर है? प्लेटा पा लिया प्लेटा पा लिया। अभी वेट कर रही भाई इसमें डलवाओ। अभी भी नाराज है उसको सुलह जाए। चले यार माशाल्लाह दस्तरखान जी स्टार्ट हो गया जी। हामिद साहब माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा लगा। हमारे साथ तकसीम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है जी। हमारे मेहमान भी आते हैं, वो भी हमारे साथ काम करते हैं, हमारा अच्छा लगता है। हमारे प्यारों को अल्लाह हम सब का हामी नासर हो माशाल्लाह। बस पाकिस्तान जिंदाबाद। बस बस खड़का दो पकड़ के, जहाँ मिलता है कोई खड़का दो माशाल्लाह। हाँ जी क्या हाल है आपका बच्चों, ठीक हो? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह इस मस्जिद के सदक़े इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को फतह देनी है, हर महाज में फतह देनी है। ठीक है ना? आज भी डिश ठीक है आज है? हमने कहा एक मीठी डिश कर लेते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है ना? आप मूवी से घबराया ना करें, ये किसी को नुमाइश नहीं है, ये मोहब्बत है मेरी। मैं भी आप जैसा ही हूँ, बस ऐसे ही है, बस आप जैसा ही हूँ मैं भी। जैसे मुझे प्यार है, बस मेरे लोगों से मुझे प्यार है यार। बड़े प्यारे लोग हैं मेरे पाकिस्तान के, और जहाँ भी मुसलमान रहते हैं मेरे प्यारे लोग हैं। जो भी उम्मत है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है वो सब प्यारे हैं, वो सब प्यारे। अल्लाह सबको सलामत रखे, जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल है। आमीन सुम्मा आमीन। आपने पेट भर के खाना, थोड़ी कमीज करनी का पैर ना लग जाए माशाल्लाह। लो जी माशाल्लाह जी, लंगर शुरू हो गया, बाद ये स्टार्ट करा दिया मैंने। अब दोस्त आते हैं फिर उनके साथ गपशप लगाते हैं, बैठते हैं। हाँ भी शहजादे हो, ठीक हो? हाँ जी वो पहले वाला ग्रुप चला गया, नवा ग्रुप है। लो जी नोनी मुख्तार एक मिनट आना जरा, ये दोस्त आए तो बाद में कर लेना इधर आओ। समीर ये ले जाइए, दौलत खाने दे हैं जी, ये गरीब खाना ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ दौलत पे सुभान उधर दलवा दे साहब जी माशाल्लाह अपने दोस्त हैं हमारे सलीम रहमानी साहब, शेर सलीम साहब
लंगर तो कुछ नहीं बनेगा। ओए, इधर नहीं। आमीन जी। इस तरह ऊपर है जी। हेलो मैंने कहा सही सही ये चावल चल जाएंगे अंदर चल जाएंगे। एंड हो गया माशाल्लाह आज का दस्तरखान। आज चावल थे माशाल्लाह, सब कुछ सही हो गया, एंड हो गया। लो जी खाना साथ। असल में हमें लोग बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं मुल्क, दूसरे मुल्क जो है हमारे 57 ममालकों का अगर आपस में इतफाक़ हो जाए ना जी तो फिर किसी का ये नहीं मुलाकात। ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 21 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੀ ਤਦਾਦ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ। महमूद 51 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ। ਸਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ इस दुनिया से मगफरत फरमा और तमाम लोग यहाँ तौफीक अता फरमा दो। वो मरते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखें और आपकी ज़ुबान से कलमा तैयबा भी जारी रहे और हमारी आखिरत की मंजिलें साफ फरमा। आमीन। बात करो फरमा सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदना व हादियना व मुर्शिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। आमीन आमीन। हाँ जी खा लिया जी आप लोगों ने भी खाना जी माशाल्लाह। अच्छा खाना पका हुआ था, चावल अच्छे थे भाई किसान। हाँ जी बहुत अच्छा लगा। चलो जी मज़ा मजा कराते जी। आई लव यू भाई भाई। थैंक यू लो जी माशाल्लाह इधर भी लगे हुए जी बंदे। आज का दस्तरखान क्लोज हो गए इंशाल्लाह। इसी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। ओके जी।